Nitrogen cycle, generally it has 4 steps. Number 1, nitrogen fixation. Second one, ammonification. Third one, nitrification. Fourth one, denitrification. Nitrogen fixation, atmospheric nitrogen must have to fix in the atmosphere, that means in the soil. We know that plant not able to intake atmospheric nitrogen directly, as the amount of the nitrogen abundant in the atmosphere 78 point something, but it is difficult to absorb the atmospheric nitrogen by the plant directly. So that's why until or unless it is not converted into a nitrogenous compound like nitrite, nitrate ions, as well as the ammonia, it is not taken by the plants. So that's why nitrogen fixation is important for the plant. That's why plant can take the nitrogen, that means nitrogen from the soil. First of all, nitrogen fixation, how it is possible? In case of the symbiotic plant, particularly leguminous plant, as you know, in case of the leguminous plant, some nodules are present in the root, and inside the nodules, that means rhizobium bacteria or some independent bacteria, they are present in the rhizobium. That means particularly example of rhizobium, they trap the atmospheric nitrogen and convert into nitrogenous compound, and nitrogenous compound is essential for the plant growth. And instead of this, the bacteria getting residence from inside the plant, as well as that they are trapping the food materials from the plant. So in this way, both the organism, rhizobium bacteria and plant body, both are mutually benefited. So this is called the symbiotic nitrogen fixation. Other than leguminous plant, can you say, yesterday I told you, which name of the plant which can trap the atmospheric nitrogen directly? Can you say? Hello? Can you say, other than leguminous plant, nitrogenous, that means some other plant, they can trap atmospheric nitrogen? Which plant? Gymnospermous. Gymnospermous plant. Name ginkgo, G-I-N-K-G-O, ginkgo, and alnus, A-L-N-U-S, alnus. Okay, alnus and ginkgo, these are gymnospermous plant. They can trap atmospheric nitrogen other than leguminous plant. You have to remember this type, these are the exceptional cases. Other than leguminous plant, which plant trap the atmospheric nitrogen directly from the atmosphere and convert it into atmosphere, that means nitrogenous compound. Next one, ammonification. This is nitrogen fix. This is symbiotic nitrogen fixation. Another way natural nitrogen fixation takes place. Natural nitrogen fixation during the lightning. Huge amount of the lightning, जब बिजली गिरती है, उस समय huge amount of nitrogen and oxygen, it is released into the atmosphere. और नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन दोनों मिलके कंबाइन होकर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हो गया. और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड whenever mix up with the water vapor, it form the nitric acid, and nitric acid whenever condensed, it fall on the surface of the earth in the form of the rain. This is called the acid rain. And when this rain percolate in the soil, it break down into nitrate ions. Nitric acid में nitrate ions convert होता है, तो वो soil से plant हमेशा absorb कर लेता है. ठीक है, तो कैसे होता है natural nitrogen fixation? जब लाइटनिंग होता है, लाइटनिंग जब बिजली गिरती है, उस समय क्या होता है, ह्यूज अमाउंट ऑफ द हीट रिलीज होता है एटमॉस्फेयर में. अलोंग विथ हीट नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन रिलीज होता है, और दोनों कंबाइन होके क्या होता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनता है. और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड किसका साथ रिएक्ट करता है, बताओ. हेलो, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड किसका साथ रिएक्ट करता है? हेलो, किसका साथ रिएक्ट करता है? वाटर वेपर का साथ. और वाटर वेपर का साथ अगर रिएक्ट करता है तो इट फॉर्म द नाइट्रिक एसिड, और नाइट्रिक एसिड जब कंडेंस होता है, इट फॉर्म द एसिड रेन, एंड दिस एसिड रेन फॉल ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, और सॉइल में जब जाता है तो ब्रेक डाउन होता है, नाइट्रेट आयन में कन्वर्ट हो जाता है. ओके, सो नाइट्रेट आयन में कन्वर्ट होने के बाद प्लांट अगेन उसको एब्जॉर्ब करता है. अंडरस्टैंडिंग और नॉट? हेलो, हेलो, Yes. हेलो, हेलो. Yes, sir.
अरे आवाज तो दीजिएगा, कम हम कहाँ से सम, यही तो ऑनलाइन क्लास का डिमेरिट्स है। अगर आप सुन रहे हो नहीं सुन रहे, मैं हमको कोई रेस्पॉन्स देगा तभी ना हम, तो यहाँ से चिल्लाने से क्या फायदा है? इफ यू आर नॉट रेस्पॉन्डिंग तो कैसे होगा? आप कम से कम जवाब दो, जो आंसर हम नहीं मांग रहा है, आप लाइन पे है कि नहीं वो हमको जवाब दीजिए, ठीक है ना? तो अच्छा, नेक्स्ट वन, अमोनिफिकेशन। ये तो नाइट्रोजन फिक्सेशन हो गया। इसके बाद अमोनिफिकेशन, नाइट्रोजन साइकिल का ये सेकंड स्टेप है अमोनिफिकेशन। अमोनिफिकेशन क्या होता है? अमोनिफिकेशन that means human beings or animal and plant body is made up of proteins. This protein whenever dead occurs, plant body हो चाहे animal body का death तो होता ही है, उसके बाद क्या होता है? It mix up within the soil by means of the putrefying bacteria, by means of putrefying bacteria or decomposers mix up within the soil. This is known as ammonification. Ammonification क्या होता है? After the death of the plant and animal, it mix up within the soil by the help of bacteria, cone bacteria, by the help of putrefying bacteria, or we can say the that means decomposers, or this process is known as ammonification. इसके बाद नाइट्रिफिकेशन। नाइट्रिफिकेशन क्या होता है? नाइट्रिफिकेशन में that is 2 steps होता है। That means जो ये जो अमोनिया जो बन गया अमोनिफिकेशन में, ammonia again converted into nitrate ion, then nitrite ion, then nitrate. 2 steps होता है। ammonia again converted into nitrite ions and then nitrate ions. and nitrite ions किसका कौन बैक्टीरिया से? नाइट्रोसोमोनास बैक्टर से। और देन नाइट्रेट फिर से कैसे होता है? नाइट्रोबैक्टर से। सो 2 स्टेप, 2 एरो लगाना है, अमोनिया टू नाइट्राइट NO2 माइनस, देन अगेन एरो देके NO3 माइनस। एक साइड में बैक्टीरिया हो गया एरो का ऊपर में नाइट्रोसोमोनास, और एक साइड में एरो का ऊपर हो जाएगा आपका नाइट्रोबैक्टर। ये 2 बैक्टीरिया आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द कन्वर्सन ऑफ अमोनिया टू नाइट्राइट देन नाइट्रेट। ओके, सो दिस आर द स्टेप्स इन्वॉल्व in the nitrification. So nitrification is the conversion of ammonia into nitrate, then nitrite, then nitrate by the help of the nitrosomonas and nitrobacter respectively is called nitrification. समझ में आ रहा है? हेलो हेलो, कौन है आज? गुनिका नहीं है तो आपको तो बोलना चाहिए, आप तो बहुत अच्छा से कल समझ गई थी। हेलो, आज गुनिका क्लास में नहीं है। नहीं है? अच्छा ठीक है, तो आप समझ में आ रहा है ना? 2 स्टेप है, 2 स्टेप है। एक है नाइट्रोजनस, दैट मींस कन्वर्सन होता है नाइट्राइट एंड देन नाइट्रेट, नाइट्राइट देन नाइट्रेट। नाइट्राइट आयंस दैट मींस उसमें एक बैक्टीरिया होता है नाइट्रोसोमोनास, एंड देन नाइट्रेट्स जब कन्वर्सन होता है उसमें नाइट्रोबैक्टर रेस्पेक्टिवली। अच्छा, नेक्स्ट स्टेप जो 4th स्टेप है डिनाइट्रिफिकेशन। डिनाइट्रिफिकेशन क्या है? डिनाइट्रिफिकेशन मींस conversion of the nitrites and nitrates into free atmospheric nitrogen. Conversion of the nitrites and nitrates into free atmospheric nitrogen again convert हो जाएगा। This is called the denitrification. उसमें कौन सा बैक्टीरिया का जरूरत होता है? बैक्टीरिया स्यूडोमोनास। कौन सा बैक्टीरिया? बैक्टीरिया स्यूडोमोनास। याद रहेगा, जब नाइट्रिफिकेशन डिनाइट्रिफिकेशन होता है तो कन्वर्सन ऑफ द नाइट्रेट्स एंड नाइट्राइट्स इनटू एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इज कॉल्ड डिनाइट्रिफिकेशन। इसमें जो बैक्टीरिया का होता है इज रेस्पॉन्सिबल, द बैक्टीरिया रेस्पॉन्सिबल फॉर दिस प्रोसेस दैट इज कॉल्ड स्यूडोमोनास। ये साइक्लिक पाथवे नाइट्रोजन साइकिल। बट यस्टरडे क्वेश्चन बेस्ड डिस्कस किए तो बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग। Nitrogen cycle is called the perfect cycle. Why it is called the perfect cycle? Can you say? Amount of percentage of nitrogen remain constant in atmosphere. हाँ, constant. क्यों ना? उसका कोई लॉस नहीं होता है। नाइट्रोजन आज भी आप लोग देखते हैं जो नाइट्रोजन का जो परसेंटेज एटमॉस्फेयर में
जैसा था ऐसा ही है, उसमें कोई चेंजेस नहीं, एज इट इज। बट कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन का जो दोनों है, वो दोनों का दैट मीन्स चेंज हो रहा है, परसेंटेज में कमी आ रहा है, ज्यादा हो रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड का परसेंटेज ज्यादा हो रहा है, ऑक्सीजन का कम हो रहा है, तो हो ही रहा है। बट नाइट्रोजन अपना जगह पर वो एक्चुअली फिक्स्ड है, क्यों ना, इसीलिए उसमें कोई लॉस नहीं होता है नाइट्रोजन का। हाँ, यस्टरडे डिस्कस एक जो नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर जो प्रिपेयर होता है, जो सॉइल में दिया जाता है नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर, वो भी एक इंडस्ट्रियल प्रोसेस होता है जिसका नाम हेबर्स प्रोसेस, बाय मींस ऑफ व्हिच एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को ट्रैप किया जाता है, ट्रैप करके उसको नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर बनाया जाता है। एग्जाम्पल क्या है, यूरिया, खाद का नाम सुने, यूरिया। हेलो, Yes, sir. हाँ, यूरिया का नाम मोटा मोटी आप लोग सुने हैं, नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर्स है, नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर। और नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर जो बनता है वो सॉइल में फिर से उसको दिया जाता है, और सॉइल में दिया जाता है, प्लांट उसको दोबारा ऑब्जर्व करता है, और फिर से वो मतलब में रोटेशनल होता है, डिनाइट्रिफिकेशन, फिर से वो ये डिनाइट्रिफिकेशन होता है। इसीलिए क्या होता है ना, अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन रिमेन कांस्टेंट इन द एटमॉस्फेयर। ओके, याद रहेगा, अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन साइकिल, इतना सारा साइकिल है, कार्बन साइकिल, दीज आर ऑल कलेक्टिवली नोन एज बायोजियोकेमिकल साइकिल, दैट इज वाटर साइकिल, ए साइकिल, carbon cycle, oxygen cycle, sulfur cycle, phosphorus cycle, nitrogen. Among these biogeochemical cycle, nitrogen cycle is called perfect cycle because nitrogen amount of nitrogen in the atmosphere remain constant. ठीक है। अच्छा, इसके बाद आप इस चैप्टर में है डिनाइट्रिफिकेशन हो गया, बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन, ये तो आपका ये हो गया। फॉर्मेशन है, रूट नोड्यूल फॉर्मेशन, यस्टरडे आप डिस्कस किए थे। नोड्यूल्स होता है लेगुमिनस प्लांट में। किसी अगर लेगुमिनस प्लांट को अगर मिट्टी से उखाड़ के देखिएगा तो उसका जो रूट्स होता है, रूट में थोड़ा सा गोल गोल स्ट्रक्चर पाया जाता है, दीज आर नोन एज द नोड्यूल्स। ये नोड्यूल्स का अंदर में बैक्टीरिया होता है जिसका नाम राइजोबियम, बट उसमें एक पिगमेंट भी होता है। नेम ऑफ द पिगमेंट व्हिच प्रेजेंट इन द नोड्यूल्स ऑफ द लेगुमिनस प्लांट, कौन सा पिगमेंट, पिगमेंट का नाम क्या है, कल बताए थे? Leg hemoglobin. वाह, वेरी गुड, लेग हीमोग्लोबिन। उस कलर क्या है लेग हीमोग्लोबिन का? Pink. पिंक कलर। ये सब देखिए, क्लास को सुनिएगा तो तभी याद रहेगा। अगर क्लास को जोड़ने का बाद देखिए, बहुत स्टूडेंट्स है नो डाउट, अच्छे रिस्पॉन्स करता भी है, लेकिन कुछ स्टूडेंट है वो बोलने की बात नहीं है, वो ठीक से सुनते भी नहीं। अगर ये कल वाला रिपीट हम इसीलिए कर रहा, थोड़ा सा डिफिकल्टीज है, इसको फिर से एक बार रिपीट कर दिए। अभी आपको फॉर्मेशन ऑफ नोड्यूल, रूट नोड्यूल्स कैसे फॉर्मेशन होता है ये आपको बताया जाएगा। रूट नोड्यूल्स, रूट हेयर्स होता है, दैट मीन्स प्लांट में। रूट हेयर इन लेगुमिनस प्लांट कम इन कॉन्टेक्ट विथ राइजोबियम, राइजोबियम बैक्टीरिया सॉइल में होता है, ठीक है, लेकिन रूट हेयर प्लांट में होता है। रूट हेयर माइन्यूट स्ट्रक्चर और हेयर लाइक स्ट्रक्चर। जब रूट हेयर व्हेनेवर कॉन्टेक्ट विद राइजोबियम, जब उसका साथ ज्वाइन और कॉन्टेक्ट हो जाता है, इट बिकम्स कर्ल्ड एंड डिफॉर्म स्ट्रक्चर, तब कर्लिंग हो जाता है, उसका कर्लिंग हो जाता है, दैट मीन्स सीधा नहीं रूट हेयर, वो थोड़ा बेंडिंग हो जाता है। कैसे बेंडिंग होता है? जब राइजोबियम सॉइल में रहता है बैक्टीरिया, उसका साथ जब कांटेक्ट हो जाता है, बैक्टीरिया का साथ जब ऐड होता है, उसके बाद क्या होता है ना, कर्लिंग हो जाता है। द राइजोबियम एंटर्स द डिफॉर्म रूट हेयर, उसके बाद क्या हो जाएगा, द राइजोबियम जब कांटेक्ट होगा उसका साथ, वो डायरेक्ट रूट हेयर का अंदर होते हुए वो प्लांट, दैट मीन्स डायरेक्ट रूट हेयर में एंट्री कर जाएगा। व्हेयर दे प्रोलिफरेट, प्रोलिफरेट मीन्स उनमें सेल में प्रोलिफरेशन हो जाएगा, मास ऑफ सेल कम हो जाएगा विद इन द रूट हेयर्स, रूट हेयर्स का अंदर में प्रोलिफरेशन हो जाएगा। प्रोलिफरेशन मीन्स उसका ग्रोथ हो जाएगा, ठीक है। द प्लांट रेस्पॉन्ड बाय द फॉर्मेशन ऑफ इन्फेक्शियस थ्रेड, उसके बाद क्या होगा, उसका जो राइजोबियम बैक्टीरिया, उसमें एक इन्फेक्शियस थ्रेड बनता है, जो प्लांट उसको रेस्पॉन्ड करता है, दैट ग्रो। हेलो, मुंह में दे तो रहा था, दे दो, हाथ में दे दो, हाथ में। हेलो,
हेलो, Yes, sir. Yes. थोड़ा आवाज आ रही है किसी का? ठीक है, तो जब क्या है रूट, पहले तो रूट हेयर whenever contact with the rhizobium bacteria present in the soil, तब क्या होगा, कर्लिंग ऑफ द रूट हेयर। कर्लिंग ऑफ रूट हेयर होता है तो राइजोबियम बैक्टीरिया रूट हेयर का अंदर में एंट्री हो जाए, where they proliferate मीन एनलार्जमेंट। उसके बाद धीरे धीरे इन्फेक्शियस थ्रेड बनाता है, वो इन्फेक्शियस थ्रेड प्लांट से डायरेक्ट एंट्री हो जाता है, कनेक्ट हो जाता है। इसके बाद क्या है ना, इट बिलीव दैट साइटोकाइनिन प्रोड्यूस्ड बाय द बैक्टीरिया, बैक्टीरिया कौन सा हार्मोन रिलीज करता है, साइटोकाइनिन, और प्लांट कौन सा हार्मोन रिलीज करता है, दैट इज ऑक्सिन हार्मोन। प्लांट ऑक्सिन हार्मोन रिलीज करता है और बैक्टीरिया साइटोकाइनिन, दो हार्मोन, बैक्टीरिया साइटोकाइनिन और प्लांट ऑक्सिन हार्मोन। तो बैक्टीरिया जो साइटोकाइनिन हार्मोन रिलीज करता है, साइटोकाइनिन हार्मोन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द डिविजन ऑफ सेल, और प्लांट जो ऑक्सिन हार्मोन रिलीज करता है, इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ ऑफ द प्लांट। ठीक है, तो दोनों मिलकर क्या होता है, जो साइटोकाइनिन हार्मोन बैक्टीरिया रिलीज करता है वो क्या होगा, सेल डिवीजन। वो जो स्ट्रक्चर है, प्रोलिफरेटेड स्ट्रक्चर है, वो धीरे धीरे डिवाइड होके ए मास ऑफ सेल बन जाएगा। ठीक है, एनलार्जमेंट ऑफ द नोडुल्स, बाद में क्या होगा, नोडुल एनलार्जमेंट हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद क्या होगा, धीरे धीरे वो एनलार्जमेंट हो जाएगा और एक नोडुल का फॉर्म में डिवाइड, दैट मीन्स ये शेप ले लेगा वो। ठीक है, तो फिर से मैं एक बार चॉकआउट कर देते हैं। रूट हेयर ऑफ द लेगुमिनस प्लांट किसका साथ कांटेक्ट होता है, सॉइल में राइजोबियम बैक्टीरिया होता है, उसका साथ कांटेक्ट होता है। वो राइजोबियम बैक्टीरिया कम्स इनसाइड द रूट हेयर और उसका साथ प्रोलिफरेशन हो जाता है, एंट्री हो जाता है रूट हेयर में, वहां जाके प्रोलिफरेट करता है। उसके बाद क्या होता है ना, इन्फेक्शन थ्रेड बनाता है, जो थ्रेड डायरेक्टली प्लांट का साथ कनेक्ट होता है, और धीरे धीरे क्या होगा, राइजोबियम साइटोकाइनिन हार्मोन रिलीज करता है, और जो प्लांट है वो ऑक्सिन हार्मोन रिलीज करता है। साइटोकाइनिन हार्मोन जब रिलीज करता है बैक्टीरिया, राइजोबियम वो सेल डिवीजन करता है, और धीरे धीरे मास ऑफ सेल और मास ऑफ प्रोटोप्लाज्म बन जाता है, और प्रोलिफरेशन टेक्स प्लेस और एनलार्जमेंट ऑफ द नोडुल्स टेक्स प्लेस, और धीरे धीरे ये एक गोल स्ट्रक्चर बन जाएगा जिसको बोलते हैं हम लोग रूट नोडुल्स। और ये भी लास्ट में इंफॉर्मेटिव है, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ द रूट नोडुल्स, नाइट्रोजन फिक्सेशन, दैट इज दो जीन्स है, तीन जीन, नॉड जीन, निफ जीन एंड फिक्स जीन। यू विल रिमेम्बर इट, लिख सकते हो कौन जीन इसमें रिस्पॉन्सिबल है। अभी तो जीन और जेनेटिक्स तो अभी नहीं है, बट इसमें तीन जीन का, इसमें एक नॉड जीन, निफ जीन एंड फिक्स जीन। नॉड, निफ एंड फिक्स जीन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ द नोडुल्स। कौन कौन तीन जीन है, नॉड जीन, फिक्स जीन एंड निफ जीन्स। फिर से एक बार बोलते हैं, नॉड जीन, निफ जीन्स एंड फिक्स जीन्स। नॉट, निफ, फिक्स, ये तीन जीन रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ रूट नोडुल्स इन लेगुमिनस प्लांट। याद रहेगा? हेलो? Yes, sir. नॉट, निफ एंड फिक्स जीन। तो ये नोडुल्स फॉर्मेशन हो गया। कैसे होता है राइजोबियम, फिर से एक बार मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। पहले रूट हेयर्स जो लेगुमिनस प्लांट में है, वो सॉइल में जो बैक्टीरिया है राइजोबियम, उसका साथ कांटेक्ट में आता है, कांटेक्ट आता है तो डायरेक्ट राइजोबियम बैक्टीरिया रूट हेयर का थ्रू से रूट हेयर में एंट्री कर जाता है, वहां जाके प्रोलिफरेट करता है, और बाद में क्या होगा ना, इन्फेक्शियस थ्रेड बनाता है, जो थ्रेड प्लांट का साथ डायरेक्ट कांटेक्ट हो जाता है, अदर पार्ट्स में जैसे स्टेम का साथ कांटेक्ट हो जाता है। उसके बाद क्या होता है ना, बैक्टीरिया साइटोकाइनिन हार्मोन रिलीज कर देता है। एट द सेम टाइम प्लांट रिलीज ऑक्सिन हार्मोन। जब साइटोकाइनिन हार्मोन बैक्टीरिया रिलीज कर देता है, उस समय क्या होगा ना, सेल डिवीजन होगा, सेल डिवीजन होके मास ऑफ सेल बन जाएगा,
और वो जो प्रोलिफरेटेड टिश्यूज है वो एनलार्ज होके एक नोडुल्स फॉर्म में आ जाएगा। तो नोडुल्स फॉर्म में जब आ जाएगा नेचुरली स्ट्रक्चरली एक नोडुल बना उसको बोला जाएगा। और उसमें 3 जीन रेस्पॉन्सिबल, नॉट, निफ एंड फिक्स जीन, नॉट, निफ एंड फिक्स जीन। ओके, नाउ सिंथेसिस ऑफ अमीनो एसिड, ये तो हो गया नाइट्रोजन या सिंथेसिस, बट अमीनो एसिड सिंथेसिस प्लांट में कैसे होता है? अमीनो एसिड सिंथेसिस, द अमोनिया फॉर्म्ड बाय द नाइट्रोजन फिक्सेशन used for the synthesis of amino acid. Okay, इसमें there are 2 processes by which the amino acid synthesis takes place in the plant. Amino acid synthesis, नंबर 1 में एक रिडक्टिव एमिनेशन एंड नंबर 2 में होता है ट्रांसएमिनेशन। ट्रांसएमिनेशन और एक होता है रिडक्टिव एमिनेशन। क्या 2 प्रोसेस है अमीनो एसिड सिंथेसिस का? ट्रांसएमिनेशन एंड रिडक्टिव एमिनेशन। ट्रांसएमिनेशन क्या होता है? व्हाट इज ट्रांसएमिनेशन? ट्रांसएमिनेशन में in this process the amino group is transferred from one amino acid to the keto group of keto acid. In this process the amino group is transferred from one amino acid to the keto group of keto acid. एक इसका खाली डेफिनेशन ही याद रखना है, एनसीईआरटी बुक में भी होगा। In this process amino group is transferred from one amino acid to the keto group of keto acid, one keto acid. Ideal example, glutamic acid is the main amino acid. Okay, glutamic acid is the main amino acid. Okay, ये आइडियल एग्जाम्पल हो गया। अच्छा, इस रिएक्शन में कौन सा एंजाइम का जरूरत होता है? ट्रांसएमिनेज। प्रोसेस का नाम है ट्रांसएमिनेशन और एंजाइम का नाम है ट्रांसएमिनेज। आइडियल एग्जांपल ग्लूटामिक एसिड। क्या होता है इसमें? इन दिस प्रोसेस अमीनो एसिड ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन अमीनो एसिड टू द कीटो ग्रुप ऑफ वन कीटो एसिड। ओके, सेकंड वन रिडक्टिव एमिनेशन। ये तो ट्रांसएमिनेशन, इसमें ट्रांसएमिनेज एंजाइम का भी जरूरत होता है, लेकिन रिडक्टिव एमिनेशन में क्या होता है? इन दिस प्रोसेस अमोनिया react with alpha ketoglutarate acid। जो रिडक्टिव एमिनेशन है इस प्रोसेस में, इन दिस प्रोसेस अमोनिया रिएक्ट विथ अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड, अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड एंड फॉर्म द ग्लूटामिक एसिड। ये हो गया आपका। इन दिस प्रोसेस अमोनिया रिएक्ट विथ अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड, अमोनिया रिएक्ट विथ अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड एंड फॉर्म द ग्लूटामिक एसिड। ये रिएक्शन आपको लिखना पड़ेगा एरो देके। रिडक्टिव एमिनेशन में क्या होता है? अगेन फिर से मैं बोल रहा हूँ, अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड, अमोनिया रिएक्ट विथ अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड एंड फॉर्म द ग्लूटामिक एसिड। इसमें भी एंजाइम जरूरत होता है। एंजाइम का नाम है ग्लूटामेट डिहाइड्रोजिनेज। ग्लूटामेट डिहाइड्रोजिनेज, ग्लूटामेट डिहाइड्रोजिनेज, इसमें एंजाइम का नाम है ग्लूटामेट डिहाइड्रोजिनेज। ओके, तो ये रिडक्टिव एमिनेशन एंड ट्रांसएमिनेशन। इसके बाद इस चैप्टर में लास्ट में जो टॉपिक है वो है एमाइड्स। किसको बोलते हैं? एमाइड्स are formed by the replacement of the hydroxyl ion in the form of amino acid. Okay, इसका आइडियल एग्जांपल होगा asparagine and glutamine. Asparagine, glutamine are the two major amides found in the plants. Two major amides found in the plant. They are formed by the aspartic acid, glutamic acid in the presence of enzyme asparagine synthetase and glutamic synthetase respectively. तो एक ये जो एमाइड्स होता है, व्हाट आर द फंक्शन ऑफ एमाइड्स? एमाइड्स हैव मोर नाइट्रोजन देन अमीनो एसिड। ये एमाइड्स जो प्लांट में होता है, अमीनो एसिड से ज्यादा नाइट्रोजन इसमें मिलता है। ओके, सो इस हिसाब से हम लोग अगर देखें तो एमाइड्स आर फॉर्म्ड बाय द रिप्लेसमेंट ऑफ द हाइड्रोजन आयंस इन द अमीनो एसिड। इसका आइडियल एग्जांपल है asparagine and glutamine. These are the two amides which are present in the plant body, and
एंजाइम्स इसमें भी रिक्वायर्ड होता है। एंजाइम्स का क्या है, एस्पाराजिन सिंथेटेज और ग्लूटामाइन सिंथेटेज रेस्पेक्टिवली इसमें जो होता है। और एमाइड का क्या फंक्शन है, एमाइड्स आर मोर नाइट्रोजन देन अमीनो एसिड। ओके, सो दीज आर एमाइड्स। सो इस चैप्टर में और each and everything is discussed, although this chapter is deleted from your syllabus, but each and everything discussed पहले से आपका जो इस चैप्टर में पहले आपका नेचुरली जो है ऑटो दैट मिनरल न्यूट्रिशन, एसेंशियल एलिमेंट्स, मैक्रो एलिमेंट्स, माइक्रो एलिमेंट्स, हाइड्रोपोनिक्स, डेफिशिएंसी सिम्टम्स इन द प्लांट। अच्छा, हाइड्रोपोनिक्स क्या होता है बताओ तो। हाइड्रोपोनिक्स, हेलो, हाइड्रोपोनिक्स, हेलो, हेलो। The technique of growing a soilless plant in a nutrition solution. कल्चर ऑफ द प्लांट आर नोन एज ये सृष्टि बोल रहे, कौन? हेलो, Astha. कौन? आस्था? Yes, sir. अच्छा अच्छा। आज छुट्टी मना रहा है बहुत स्टूडेंट, लगता है ज्वाइन नहीं किया जाता। पहले एक समय था 10 स्टूडेंट्स 10 स्टूडेंट आया, तो उसके बाद धीरे धीरे घटते जा रहा है। ठीक है, तो जो भी है हमको, बट मंडे से, फ्रॉम मंडे यू विल रिमेम्बर, एक चैप्टर जो डिलीटेड है वो डाइजेशन चैप्टर, वो चैप्टर मंडे को हम शुरू करेंगे। ठीक है ना? हेलो। Yes, sir. हाँ, वो डाइजेशन, ह्यूमन बींग्स का डाइजेशन चैप्टर है, उसको थोड़ा सा शुरू करेंगे। उसके बाद में मैं फिर से टर्म 2 का जो है रिवीजन वर्क में जाऊं। ठीक है ना? तो अभी तो आपका एग्जामिनेशन का डेट अभी कुछ पता नहीं है, कब होगा क्या होगा अभी कुछ पता नहीं, बट टिल फरवरी हम लोग चले, पढ़ाई करें, रिवीजन करें। ठीक है, अभी 1.5 मंथ्स अभी भी है, तो उसको पहले तो डिलीटेड सिलेबस का जो एक चैप्टर डाइजेशन चैप्टर वो है, उसके बाद हम लोग जाएंगे आपका रिवीजन वर्क में। रिवीजन वर्क में धीरे धीरे होगा, ऐसा नहीं जो एक दिन में एक चैप्टर हो जाएगा, ऐसा नहीं है, धीरे धीरे रिवीजन वर्क होते जाएगा। अच्छा, मंडे से हम लोग स्कूल, अभी स्कूल में क्लास लेंगे जैसे पहले लेते थे, व्हाइट बोर्ड और जो भी है, या बोर्ड जो भी यूज करेंगे उसमें इफेक्टिव होगा, आपके लिए दिखाई देगा, बोर्ड में कुछ लिखेंगे वो भी आपको बनाना है, तो उसमें अच्छा से क्लास होगा। वो अरेंजमेंट हो गया, मंडे से उस टाइप का क्लास होगा जैसे पहले पास प्रैक्टिस हम लोग लेते थे ना स्कूल से। हेलो। Yes, sir. हाँ, जैसे बोर्ड पे कुछ लिखते थे और उसको आप लोग लिखते थे, उस टाइप का होगा। तो मंडे, फ्रॉम मंडे उस टाइप का एग्जामिनेशन होगा। ये बड़ी एग्जाम क्लास होगा, एग्जामिनेशन नहीं है। तो इस चैप्टर में तो और तो कोई टॉपिक बचा हुआ नहीं है। अच्छा, एक चीज बताओ तो, बोरोन डेफिशिएंसी में क्या होता है बताओ? मैंने बहुत बार उसको रिपीट किया है। Pollen बोरोन, germination. हाँ, पोलन जर्मिनेशन। ठीक है, पोलन जर्मिनेशन तो है, बट पोलिनेशन जो है, फॉर्मेशन ऑफ पोलन ट्यूब मेन फंक्शन है। पोलन ट्यूब बनता है जो उसका स्टाइल का टिश्यूज को डिसॉल्व कर दिया जाता है। तो हम लोग जानते हैं जो केमोट्रोपिज्म होता है, पोलिने दैट इज पोलिनेशन, एक वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ द केमोट्रोपिज्म। पोलन ग्रेन तो स्टिग्मा में जार्मिनेट हो जाता है फीमेल फ्लावर का, उसके बाद जार्मिनेट होने का बाद वो जो पोलन ट्यूब बनाता है, वो पोलन ट्यूब सीधा जाके तो ओवरी का जो माइक्रोपाइल होता है उसका साथ ज्वाइंट होता है। तो माइक्रोपाइल तक जाने के लिए जो स्टाइल का अंदर तक जो एक टिश्यूज को एक ट्यूब बनता है, वो ट्यूब मतलब स्टाइल का टिश्यूज को डिजोल्व होता है, और डिजोल्व करने का काम केमिकल्स का है। कैल्शियम बोरोन आयोनोसाइटल सुगर कॉम्प्लेक्स, ये एक केमिकल होता है, उसमें बोरोन का जरूरत होता है। अगर बोरोन डेफिशिएंसी होगा तो पॉलिनेशन हो जाएगा, बट फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। याद रहेगा ना? Yes, हेलो। sir. पॉलिनेशन हो जाएगा बट फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, इसीलिए बोरोन का डेफिशिएंसी। लेकिन हमारा इंडिया में एक्चुअली इलिटरेसी आप लोग जानते हैं, खेती कौन लोग करता है?
अनपढ़ लोग, तो खेती जो गांव में देहात में लोग करते हैं उतना नॉलेज नहीं है, बट नाउ एडेज अगर एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस ठीक से करना है तो उसमें भी नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, हम लोग जाके खेती में दे रहे हैं खाद खाद सब कुछ दे रहे हैं, लेकिन जो डेफिशिएंसी एक्चुअल सॉइल में जो है वो बोरोन हम लोग को पता नहीं चल रहा है, जिसमें बोरोन डेफिशिएंसी, उसमें क्या होगा ना, सॉइल टेस्ट करने का बाद ही पता चलेगा उसमें कौन कौन मिनरल का डिफिशियंसी है। तो सॉइल टेस्ट यहाँ होता है कहाँ, विदाउट टेस्टिंग ऑफ द सॉइल तो हम लोग दे देते हैं। हम लोग का बॉडी में जैसे ब्लड टेस्ट करते हैं, विटामिन न्यूट्रिएंट्स का डेफिशिएंसी पता चल जाता है, तो वहाँ सॉइल टेस्ट करने के बाद उसके बाद उसमें प्लांट में कौन सा डेफिशिएंसी होगा वो पता चल जाएगा। तो ऐसा नहीं होता है, इस कारण से हमारा एग्रीकल्चर जो सेक्टर जो है वो उतना इफेक्ट मतलब फायदामंद नहीं होता है, लॉस होता है कभी कभार फार्मर्स। ठीक है ना, तो ये हो गया। अच्छा, नाइट्रोजन डेफिशिएंसी से क्या होता है बताओ, तो कॉमन सिम्टम्स बताओ क्या क्या होता है। क्लोरोसिस, स्टंटेड ग्रोथ। क्लोरोसिस और स्टंटेड ग्रोथ, और एक बताए थे जो 3 कॉमन सिम्टम्स है, स्टंटेड ग्रोथ, स्टंट डिले फ्लावरिंग, ये 3, फूल आना लेट हो जाएगा और उसमें फूल अगर होगा भी तो वो सेटिंग हो जाएगा, दैट मीन्स फर्टिलाइजेशन ये सब प्रोसेस नहीं होगा, एक होता है। तो दिस नाइट्रोजन 3 सिम्टम हमेशा इसको किया जाए तो अच्छा, मतलब याद रखोगे अच्छा हो। ठीक है, तो आज छोड़ देते हैं, टाइम लगभग हो ही गया, 1 मिनट बाकी है। ठीक है, आज छोड़ देते, मंडे से हम लोग जो पहले वाला जो सिस्टम में क्लास लेते थे उस टाइप का क्लास लेंगे, याद रहेगा ना? ठीक है, यस सर। हाँ ठीक है, थैंक यू वेरी मच। आज लेकिन कल हमारा डायरी का हिसाब से आज छुट्टी थी, लेकिन देखा गया बाद में कल ही एक मकर संक्रांति है, इसी कारण से कल छुट्टी दिया गया। ठीक है, हैप्पी मकर संक्रांति। ठीक है, सेम टू यू सर। कौन बोल रहा है, कौन? हेलो, हम बोल रहे हैं सर, आयुष। आयुष, वाह, तुम रेस्पॉन्स नहीं, जब पूछते हैं तो रेस्पॉन्स क्यों नहीं देते हो? सुन रहे थे सर। अच्छा, सुन रहे हैं। मंडे से इफेक्टिव स्कूल में जो जैसे पहले लेते तो उस हिसाब से क्लास होगा। ठीक है, अब थोड़ा सा ओके देखो। सर। अच्छा सुनो, एक चीज है, अब ऐसा नहीं है जो ऑनलाइन क्लास है उसको जो वैल्यू नहीं दे, कुछ नहीं दे बाद में, लेकिन एक चीज है, अभी कोरोना कितना दिन में तुम्हारा पीछे पीछे कितना दिन रहेगा कोई नहीं जानता है, तो वही एक मात्र ये है टीचिंग मेथड हो जा रहा है ऑनलाइन क्लासेस, इसको भी आपको वैल्यू देना पड़ेगा। क्लास में जैसे आ तो उस हिसाब से उसको भी वैल्यू दीजिए। ठीक है, आप सबको बोलिएगा रहने के लिए, हाँ, अटेंटिव रहने के लिए, जो क्लास अटेंड करे। ठीक है, अच्छा ठीक है। थैंक यू सर।